Hello students, so today let us continue with New Kings and Kingdoms part 2. In the last class we learned about the dynasties which started ruling in different parts of the subcontinent between 7th and 17th century. These were the major ruling dynasties like Chamanas, Rashtrakutas, Palas and everything. Then we learn about the emergence of new dynasties, how the Samans or the Mahasamantas declared themselves independent and started ruling from the particular region. We saw the example of Rashtrakuta, how Rashtrakuta chief overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, and then he became the king of that area. We also learned about Kadamba Mayurashrama and the Gurjar Pratihara Harichandra, who were the Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan. We started learning about administration, how things were administered there, the taxes that were taken. Then we saw about Prashastis and the land grants. Prashastis were generally written by Brahmins who were learned and who occasionally helped in administration. Then we saw about the achievements of Nagabhat. Then we also saw about how the kings rewarded Brahmanas by the grants of land. They were recorded on the copper plates. These were given to those who received the land. We were today supposed to start with what was given in the land. This is the part of Tamil section of a land grant given by the Cholas, the Chola dynasty which gave the land grant, and this is part of their Prashasti or the land grant which they gave in the copper plate. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains: fruit-bearing trees, water land, gardens and orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, a village, ant hills, platforms, canals, ditches, rivers, silt-laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and bee lakes. He who received the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by the judicial officers as fines, the tax on the betel leaves, that on the woven cloth, as well as on the vehicles. He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and embankments are built. So these are the things they have included in the land, the copper plate, that the boundaries have been बाउंड्रीज बना दी गई है वहाँ पे अर्दन एम्बैंकमेंट से, एंड थॉर्नी बुशेस भी बाउंड्रीज पे प्लांट कर दी गई है. फिर लैंड के पास क्या क्या है? लैंड के पास फ्रूट बेरिंग ट्रीज है, वाटर लैंड है, गार्डन्स है, ऑर्चार्ड्स है, ऑर्चार्ड्स जहाँ पे फ्रूट ग्रो होते हैं, ट्रीज, वेल्स, ओपन स्पेसेस, पास्चर लैंड, बंजर ज़मीन है, विलेज है, एंड हिल्स है, प्लेटफॉर्म्स है, कैनल्स, डिचेस. सो दीज आर द थिंग्स. जो भी ये लैंड रिसीव करता है उसको राइट है कि वो वहाँ से टैक्सेस कलेक्ट कर सके. ही कैन कलेक्ट टैक्सेस जो जुडिशियल ऑफिसर्स फाइन्स के रूप में करते हैं. टैक्सेस होते हैं जो बिटर लीव्स के प्रोडक्शन पे होते हैं या वोवन क्लॉथ में होते हैं, व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सब से वो टैक्सेस ले सकते हैं. अगर ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ पे अपर स्टोरीज मतलब सेकेंड थर्ड फ्लोर बेक्ड ब्रिक से बना सकते हैं. वहाँ पे छोटी या बड़ी वेल्स डग कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, थॉर्नी बुशेस प्लांट कर सकते हैं, एंड इफ़ नेसेसरी वहाँ पे कैनल्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर इरिगेशन. बट उनको इतना ध्यान रखता है कि वाटर वेस्ट ना हो और जो एम्बैंकमेंट्स है वो मेंटेन रहे. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhana. He used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about rulers and their policies. 12th century में एक संस्कृत में पोएम लिखी गई थी जो किंग्स के हिस्ट्री के बारे में बताती है ऑफ कश्मीर. ये कंपोज की गई थी कल्हाना के
कल्हाना ने कंपोज की थी. रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. किसने कंपोज की थी? उन्होंने वेराइटी ऑफ सोर्सेज यूज़ किए, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस जो थे, डॉक्यूमेंट्स थे, आई विटनेस अकाउंट्स थे, जो अर्लियर हिस्ट्रीज थी उनके बारे में भी उन्होंने मेंशन मतलब यूज़ किया है वो पोएम बनाने के लिए. जो प्रेशियस थी इसके राइटर्स कैसे होते थे कि हमेशा सबकी तारीफ़ करते थे, बट कल्हाना वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट रूलर्स. वो जो उनको सही लगता था, उनकी पॉलिसीज़ जो सही थी गलत थी, सब उन्होंने उस पोएम में लिखा हुआ है. मूविंग फॉरवर्ड, warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjara Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. Because there were three parties in this long-drawn conflict, historians often described it as a tripartite struggle. Warfare for wealth. Warfare is war. हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ डायनेस्टी स्पेसिफिक रीजन से ही रूल करती थी. वो अपना कंट्रोल, दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज ऑल्सो. वो रूल एक जगह से करती थी बट उन्होंने अपना रूल एक्सपांड करने की ट्राई की है. वन सच एरिया जहाँ पे सब ने वॉरफेयर किया था इस कन्नौज इन द गंगा वैली. कन्नौज बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था उस टाइम पे. तो जो रूलर्स थे, जो गुर्जरा प्रतिहार थे, राष्ट्रकूटा थे, पाला डायनेस्टी से जो बिलोंग करते थे, उन सब ने कन्नौज पे रूल करने की ट्राई की है. उन्होंने दे फॉट फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज. बिकॉज ये तीन पार्टी के बीच में था तो काफ़ी हिस्टोरियंस इसको ट्राई पार्टेड स्ट्रगल कहते हैं. ट्राई इज़ थ्री, सो थ्री पार्टी स्ट्रगल. As we will see in the page number 62 to 66, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about this in chapter 5. काफ़ी बार क्या करते थे रूलर्स, अपना पावर और रिसोर्सेज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे कि जितना बड़ा टेम्पल उतना वो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर किंग इतना पावरफुल रहता था. सो जब वो एक दूसरे के किंगडम पे अटैक करते थे तो वो लोग काफ़ी बार टेम्पल्स को टारगेट बनाते थे जो सबसे काफ़ी बार बहुत ज़्यादा रिच होते थे. इसके बारे में हम 5th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. और उसमें से सबसे ज़्यादा एक फेमस रूलर है इस सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी अफ़गानिस्तान. ये स्टोरी बहुत फेमस है. उसने 1997 से 1030 रूल किया था और उसने ऐसे सब टेम्पल्स और सब जगह अटैक करते करते अपना कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था अंटिल सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. His targets were wealthy temples, including that of Somnath, that is in Gujarat. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. वो क्या करता था, सब कॉन्टिनेंट पे जो वेल्दी टेम्पल्स होते थे उनको टारगेट करता था एंड वहाँ पे हर साल जाके वो रेड करता था, लूट करता था. वो उसने काफ़ी बार गुजरात के जो सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पे भी आके काफ़ी बार रेड किया हुआ है. और ये सारी जो मोहम्मद प्रॉपर्टी थी वो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वो अपने साथ गजनी ले जाता था एक अपना स्प्लेंडेड बड़ा सा कैपिटल सिटी बनाने के लिए. Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Baruni to write an account of the subcontinent. This Arabic work, known as Kitab-ul-Hind, remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare his account. सुल्तान मोहम्मद को मतलब अपनी कैपिटल सिटी बनानी थी. ही रेडेड. और उसके अलावा एक और उसका इंटरेस्ट था, उसको लोगों के बारे में जानना बहुत पसंद था जहाँ पे जाके वो रूल करता था या रेड करता था. तो उसने अपना एक स्कॉलर था अल बरूनी करके उसको अपॉइंट किया कि यू हैव टू राइट द अकाउंट्स, जो हुआ है वो सब आपको लिखना है. तो उन्होंने एक अरेबिक में बुक लिखी हुई है किताब-उल-हिंद, जो हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हिस्टोरियंस को कुछ भी फाइंड करना हो तो वो वहाँ से फाइंड कर सकते थे. और उसने अपनी बुक लिखने के लिए संस्कृत स्कॉलर्स को भी मतलब उनसे भी हेल्प ली थी कि आपने ये लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे लिखूँ
या क्या है, प्लीज़ हेल्प मी सो दैट आई कैन राइट फर्दर. Other kings who engaged in warfare included the Chamanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by Chalukyas of Gujarat and Gahadwalas of western Uttar Pradesh. The best known Chaman ruler was Prithviraj III, who ruled from 1168 to 1192. Who defeated an Afghan ruler named Sultan Muhammad Ghori in 1191, but lost to him the very next year 1192. ये तो हम लोगों ने दूसरे के बारे में बात की. अब हम बात करें तो दूसरे एक और रूलर थे चामनास, जिनको लेटर हम चौहान के रूप में जानते हैं. इन्होंने दिल्ली और अजमेर के एरिया के आसपास रूल किया है और उन्होंने अटेम्प्ट किया अपना रूल एक्सपांड करने के लिए टूवर्ड्स वेस्ट एंड ईस्ट. तो वेस्ट में उनको अपोज किया था चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड ईस्ट में अपोज किया था गहडवालास ऑफ वेस्टर्न यूपी. जो चाहमना रूलर थे उनका सबसे बेस्ट रूलर था पृथ्वीराज III. वी ऑल्सो नो हिम एज पृथ्वीराज चौहान, हु रूल्ड फ्रॉम 1168 to 1192, जिन्होंने एक अफ़गान रूलर सुल्तान मोहम्मद घोरी को हराया था इन 1191. बट इन द वेरी नेक्स्ट ईयर वापस उन दोनों के बीच में फाइट हुई एंड ही लॉस्ट द वॉर. यस, अ क्लोजर लुक द चोलास. चोलास में देखें तो उनका ये पूरा एरिया वो रूल करते थे. वी लर्न अबाउट द कैपिटल इन द लास्ट क्लास. डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी? Okay, we will see here again. How did the Cholas rise to the power? A minor chiefly family known as Muttarayyar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava kings of Kanchipuram. Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured Delta from Muttrayar in the middle of the 9th century. He built the town of Thanjavur and a temple for the goddess Nishumbashuddini there. आपको पता है चोलास पावर में कैसे आए? उनका एक माइनर चीफ फैमिली था, मतलब जो थोड़ा बहुत कंट्रोल करता था, नोन एज मुत्तरायर, जो पावर में था इन द कावेरी डेल्टा. इफ यू लुक एट द मैप, जो कावेरी डेल्टा है वहाँ पे वो रूल करते थे यहाँ से. देन व्हाट हैपन, उन्होंने वो पल्लवा किंग्स के अंडर काम करते थे जो कांचीपुरम के थे. एक विजयलया करके किंग है जो एंशियंट चीफली फैमिली से बिलोंग करता था चोलाज में, उरैयूर एरिया में. यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कैप्चर कर लिया जो मुत्तरायर था, डेल्टा फ्रॉम मुत्तरायर इन द मिडल ऑफ द 9th century. वो एरिया को कैप्चर कर लिया. वहाँ पे उसने टाउन बनाया जिसको थांजावुर करके कहते हैं, और वहाँ पे उसने एक बड़ा सा टेम्पल बनाया फॉर द गॉडेस निशुम्भसुदिनी दे. वहाँ पे उन्होंने ये गॉडेस का टेम्पल बनाया. आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर द नेम्स, बट यू हैव टू रिमेंबर. The successors of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. The Pandyan and the Pallava territories to the south and the north were made part of this kingdom. Rajaraj I, considered the most powerful Chola ruler, became king in 985 and expanded control over most of these areas. He also reorganized the administration of the empire. Rajaraj's son, Rajendra I, continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for this expeditions. जो विजयलया के सक्सेसर्स थे, एक के बाद उनके बच्चों के बच्चे जो रूल करते गए, उन्होंने अपने आजू बाजू के एरियाज कॉन्कर करना स्टार्ट किया और ऐसे ही उनका किंगडम साइज में बढ़ता गया. जो पंड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज थी जो साउथ एंड नॉर्थ में थी, इवन उनको भी उनके रीजन का, चोलास के रीजन का पार्ट बना दिया गया. राजाराज I, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर माना जाता है, वो 1985 में किंग बने और उन्होंने अपना कंट्रोल और एक्सपांड किया.
उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज की। एंड राजाराज का जो बेटा है राजेंद्र वन, उन्होंने भी यही पॉलिसी कंटिन्यू की। एंड इवन ही ऑल्सो रेडेड गंगा वैली, श्रीलंका एंड द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, जो उनके नेवी डेवलपिंग अ नेवीज फॉर वाटर आर्मी, उन्होंने एक नेवी डेवलप की फॉर दिस एक्सपीडिशंस। This was the introduction of how Cholas started ruling. We will learn about their agriculture, their expansion, their administration policy, everything in the next class. Thank you.